इस वीडियो के तहत मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ दोनों को। ये लोग दो थे इंडिया में, ये वीडियो के तहत हम लोग सैल्यूट रोडी सैल्यूट दे देते हैं, चलो दोनों विल गिव रोडी सैल्यूट टू देम। ये क्या मतलब? This roadies salt. This is called road. You don't have seen roadies. नहीं, roadies Roadies is like, and I will talk about roadies. We'll have another episode for roadies. Roadies is only series in India that is original, that is not copied. Like Big Boss is copied, Okay. Indian Idol is copied. Whatever series you see in India, that reality show is copied. Yeah, one of the other series which is not copied is क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। That is like कुछ होता है DDLJ can be copied. दिल तो पागल है can't be copied, right? Yeah. So anyway, Rodi Salute, Raghu and Rajiv used to go Rodi Salute like this. Okay, so and Raghu and Rajiv are the second person who made bald fashion in India, because previously bald were not in fashion. Oh, okay. So we'll give Rodi Salute to them. नहीं, Like मैं वो normal Okay, वाला okay. ही I will give Rodi Salute to them. So okay. Okay. So Episode 2 of our rapid podcast from the Two Oxes. This episode is about ISRO, is about Skyroot, is about the achievements of India and ISRO in space exploration. Skyroot is the first Indian private space agency that has been able to launch a rocket into space. This was done on the 18th of November at 11:30 a.m. India time, and the launch was successful. So that is the topic of the discussion. इससे पहले that we start on space exploration, I would like to give a big round of applause to the both of us, and thanks to all of our listeners and subscribers, because our first episode was a success, and I will show it on the screen also. हमारे total number of likes for our first episode were 7. Amazing. That is absolutely fantastic. And हमारे total number of subscribers were the highest number in single digits, which is 9. और वो 9 subscribers में से 2 are in front of you. Apart from that, हमारे total number of views were 174, and we got a lot of comments about the cleanliness of our room in the first episode, as you can see on the screen, and the greatest achievement that we had was that the total number of comments on our first episode was a good round figure of 0. That is fantastic. About ISRO, I would like to start with some of the achievements of ISRO. The total number of spacecraft missions that ISRO has carried out is 116, which is staggering, which is fantastic. The total is like the number of satellites that have been launched are 381. Is 381 में से about 36 of the satellites were launched in the last week of October, and this was done for the UK. UK अभी इस state में है उनकी economy that they are unable to launch their own satellites, so everything is sent across to India and to China. We must celebrate this success of ISRO, Skyroot, and overall space agency. I'd like to first take you all from the beginning. Okay, the basic things start with rocket. So what are rocket? Okay, it will be बहुत interesting होगा ये जानना कि मिसाइल भी एक kind of rocket है. So rocket का different categories होता है. मिसाइल भी एक kind of rocket है. Satellite भी एक kind of rocket है. ठीक है. So anything that get propellant anything that get propellant by thrust that takes across is called rocket. Okay, so rocket बनाना की शुरुआत अगर आप देखो तो बहुत पहले हिस्ट्री से हो चुकी थी. चाइना ने सबसे पहले रॉकेट बनाया था मिसाइल के लिए. फिर ये जो स्पेस चीज है इट्स कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये जो पूरी स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है इसकी शुरुआत हुई है वर्ल्ड वॉर 2 से. वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने रॉकेट मारना चालू किया अपने अपोनेंट के खिलाफ, जो रसिया थे या फिर
या उनके खिलाफ, जो उनको बहुत हेल्प किया। वो रॉकेट क्या थे? मिसाइल्स। सो एज आई टोल्ड कि मिसाइल्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रॉकेट। सो जर्मनी ने मिसाइल मारना चालू किया। रशियन एक बहुत बड़े रॉकेटर हुआ करते थे, वंडर डी बेन। ओके, इतने इतने बड़े, उनका सपना था कि वो रॉकेट बनाएंगे जो स्पेस में जाए, लेकिन जर्मनी ने उसका यूज किया वॉर के लिए। सो सबसे पहले हम लोग थैंक करते हैं इसरो को, और थैंक करते हैं स्काई रूट को। स्काई रूट और इसरो ने इंडिया का नाम, जो एक देश ऐसा जाना जाता था जिसको हम लोग को स्नेक चार्मर्स लोग बोला करते थे। हम लोग को लोग बोलते थे कि ये कंट्री जो भूखी नंगी की कंट्री है, वो लोग क्या स्पेस में जाएंगे, और इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड मैप में लाके छोड़ दिया है। लोग बोलते हैं कि स्पेस में क्यों जाना, तुम इतने भूखे नंगे हो। अरे अमेरिका में भी भूखे नंगे की कमी थोड़ी जो है। शिकागो में कितने होमलेस घूमते हैं, लेकिन वो लोग भी स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ना। तो अपने टाइम पे करने पे अच्छा, इंडिया करे तो पूरी वर्ल्ड मैप को बुरा। सबसे बुरा मेरे को इस एक्सप्लोरेशन का सबसे बुरा चीज क्या लगा है कि बीबीसी में इसका कवरेज ही नहीं था भाई। अगर बीबीसी में मार्स मिशन का कवरेज, जब मार्स मिशन इंडिया छोड़ रहा था, तो बीबीसी में क्या कवर किया था मार्स मिशन में कि इंडिया इतना गरीबी है, ये लोग मार्स मिशन क्यों कर रहे हैं। आज हम लोग पहला प्राइवेट स्पेस एजेंसी कर दिए, तो फिर बीबीसी में बोल रहे हैं कुछ न्यूज ही नहीं, कोई कवर ही नहीं है। अगर इंडिया में कोई रेप होता तो बीबीसी में कवर करते हैं लोग, लेकिन आज पहली बार इंडिया में ये हुआ तो कवर नहीं किए। खैर ये सब बात, डिस्ग्रेस। तो ये सब बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अपने अचीवमेंट पे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने दिनों में। सो रॉकेट जो है, रॉकेट इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स। Like missile is also kind of rocket. A rocket that has been in space is called space rocket. Correct. So missile भी एक kind of rocket है। ये rocket का जो invention हुआ है, ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुआ है। That is called blessing in disguise. So वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक घुमा हुआ साइंटिस्ट, उसको पहले बैड साइंटिस्ट बोलते थे, वंडर डी बेन, वो जर्मन साइंटिस्ट था। उसका सपना था कि वो एक रॉकेट उड़ाएगा जो पूरे वर्ल्ड में घूमे। ठीक है, जर्मनी हिटलर को बात पता चल गई है। वो बोले भैया तुम तो बहुत काम के आदमी हो, तुम हमारे लिए बना मिसाइल जो हम दागेंगे अपोनेंट पे। और वो फिर मिसाइल दागना चालू किया अपोनेंट पे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, जर्मनी वर्ल्ड वॉर हारा। वो जो साइंटिस्ट वंडर डी बेन थे, उन्होंने अमेरिका को अपने क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल, आई डोंट नो इन इंग्लिश, वो आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर ही सरेंडर टू अमेरिकन। फिर अमेरिकन ने पता नहीं क्या किया, उसका यूज करके उन्होंने नासा का इन्वेंशन किया। दैट्स हाउ नासा's रॉकेट इन्वेंशन कम। सो वंडर डी बेन हैज अ वेरी बिग हैंड इन मेकिंग नासा। सो ये जो पर्सन है वंडर डी मैन, मुझे इसका नाम, इसका स्पेलिंग हम लोग डाल देंगे, हम लोग उसमें डाल देंगे। मुझे जिसका पूरा इसका नाम है स्पेलिंग नहीं पता, बट ही वाज अ जर्मन। He was a German. He used to make rockets for missiles for German Hitler. Once Germany got वर्ल्ड वॉर जब हार गई वो, तो अमेरिका ने उसको उठाया, बोला कि भाई तू चल हमारे यहाँ एंड हमारे यहाँ नाम ये कर। So basically engineering अगर सीखनी है तो जर्मन्स की, और अगर कूट की सीखनी है तो अमेरिकन्स की। हाँ, सब कुछ जो भी कुछ भी लेना है that is from America। तो फिर उन्होंने ये किया। उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं, कंपटीशन चालू हुआ, राइट? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आपको मालूम है एक कोल्ड वॉर चालू हुआ था अमेरिका एंड रशिया के बीच। और उस कोल्ड वॉर के तहत अमेरिका और रशिया कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो ऐसा मिसाइल है जो इधर से दागे और उधर लग जाए दोनों के बीच। तो इसी के कारण दोनों के बीच का एक स्पेस का ये चालू हुआ, क्या बोलते हैं, बैटल, यू कैन से स्पेस बैटल। और रशिया ने सबसे पहले कुतिया डॉग मतलब लाइका को स्पेस में भेज दिया। हाँ, हिंदी में कुतिया ही बोलते हैं भाई, हमारे उसमें क्या, हिंदी में कुतिया ही बोलते हैं। अब कुतिया को कुतिया नहीं बोलेंगे, कुत्ते को कुत्ते नहीं बोलेंगे, अंडा को अंडे नहीं बोलेंगे, लूला को, तो सबसे पहले कुतिया को उसने स्पेस में भेज दिया। फिर सबसे पहला यार, जब हम लोग गाय को ऑक्स बोल सकते हैं तो फिर तो किसी को भी नहीं सकते। तो फिर दूसरा रशिया ने उनको भेजा, यूरी गागरिन, पहले एस्ट्रोनॉट। करेक्ट। फिर पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट वैलेंटीना तेरेस्कोवा। इससे क्या हुआ ना, अमेरिका की मिर्ची लग गई। उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों नहीं, तो अमेरिका ने पहले बनाया अपोलो मिशन। अमेरिका 1960s में
यार आप हमारे पॉडकास्ट में ये डकार वकार भी आप मारने वाले हो? सर वो आ गया। चलो ठीक है। तो अभी क्या हुआ भैया कि अमेरिका को ना मिर्ची लग गई पिछवाड़े में कि भैया ये रसिया इस गेम में आगे होने वाला है। तो अमेरिका ने ना 1960s में बना दिया अपोलो 11। करेक्ट। बहुत इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग बोलते हैं आज तक कि अमेरिका कभी चांद पे पहुंचा ही नहीं, राइट? अगर आप देखो इस पे बहुत सारी Yeah, I don't think all of that is true because you know because there is a lot of evidence and a lot of pictures. I mean, and videos also that America did land. हाँ मतलब अभी भी I mean on the क्योंकि उस जमाने में कंपटीशन चल रहा था, Right. रेस चल रही थी, Space रेस चल रही थी। तो अमेरिका कुछ दिखाना था क्योंकि रसिया पहले बाजी मार चुका था ह्यूमन को पहुंचा के, कुतिया को पहुंचा के। तो अमेरिका को कुछ दिखाना था कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने पता नहीं क्या किया। पीपल से इन दिस वर्ल्ड, स्पेस वर्ल्ड इज लाइक व्हेन यू कांट मेक इट, फेक इट। Actually, पर Xander अगर आप ना कुतिया ना बोल के अगर आप फीमेल डॉग या फिर शी डॉग बोलो तो इट विल बी मच बेटर। अरे हिंदी में तो कुतिया ही बोलते हैं ना। अगर मैं हिंदी का वर्ड का यूज करूं तो हिंदी में क्या मैं उसको महिला कुत्ता बोलूं? If the viewers are okay, I'm okay with that. You can just add a comment and let us know. आप लोग कुतिया को ऐसा ना समझे कि मैं कोई फीमेल को गाली दे रहा हूँ। नहीं वो बात नहीं कर रहा, पर लेकिन ना वो ना नाम है। I think कि when we say female dog or she dog, it is better for the optics. मुझे ऐसा लगता है। अभी एक आदमी जो भड़वा है उसको भड़वा ही बोलेंगे ना भाई। This is the reason for the lots of comments and subscribers on our channel. But let's continue and if you want you can actually add a comment on this thing also. अभी मैं वही तो अभी अमेरिका की हाँ तो उसको ना बहुत सारे वर्ल्ड में देयर आर डिफरेंट वीडियोस यू कैन सी जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं जेन्युइन है, बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। सबसे मेन कारण लोग बोलते हैं कि उस वहां पे अमेरिका का झंडा लहरा रहा था और स्पेस में कोई हवा नहीं, मून में कुछ एटमॉस्फेयर नहीं तो अमेरिका का झंडा इज फ्लाइंग एंड और मुझे भी ये लगता है, एक दिन मेरा व्यू है, आप अपना व्यू दे सकते हैं, व्यूअर अपना व्यू दे सकते हैं। मुझे भी लगता है वो एक हद तक फेक है क्योंकि 1965 के बाद किसी ने आज तक कोशिश क्यों नहीं की मून पे जाने की, राइट? अगर सोचो इस तरीके से मैन मेड मिशन, नॉन मैन मेड मिशन हुआ है लेकिन 1965 के बाद कोई मैन मेड मिशन मून में क्यों नहीं हुआ? खैर कोई नहीं, बात आते हैं उस पर। तो अभी अमेरिका ने वो कर दिया, मून पे इंसान को भेज दिया और वहां से नासा का हुआ उदय। फिर नासा ने सैकड़ों सैटेलाइट्स छोड़े बाहर। नासा ने फिर टेलीस्कोप्स बनाया, जेम्स वेब तो अभी बना है, राइट? जेम्स वेब अभी बना है टेलीस्कोप। उससे पहले भी नासा का एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप था जो हबल टेलीस्कोप, राइट? तो वो था। फिर नासा इस रेस में बहुत आगे चला गया। कारण अभी मैं नासा और इनकी बात क्यों कर रहा हूँ आपको, नासा और ये जो स्पेस एजेंसी है जो अपनी रशिया की है, इनकी बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग इंडिया पे आएंगे और बात करेंगे कि इंडियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया, क्यों लोग इंडियन स्पेस एजेंसी को बोलते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं और उस पर बोलेंगे। देखिए नासा का आगे निकलने का कारण ये था कि दोनों के बीच था कोल्ड वॉर। रशिया भी पैसा फूक रहा था स्पेस में और नासा भी पैसा फूक रहा था स्पेस में। मतलब कि जो उनका कंट्री का जो बजट है जीडीपी का, उसके बजट का बहुत सारा पैसा स्पेस में आता है। प्रॉपर देखो, मैं उतना टेक्निकली नंबर वाला बंदा नहीं हूँ, नंबर आपको मैं एक नंबर आपसे पूछूं? हाँ बोलिए। आपको एक्चुअली नंबर नहीं, एक्चुअली इट इज अ डेट। आपको पता है कि व्हाट वाज द डेट ऑफ when ISRO was created, when the Indian Space Research Organization was created? 65-66 में क्रिएट हुआ। It was created on 15th of August in 69. ओके। नासा के आई थिंक 10 साल इधर उधर होगा उसका, राइट? तो वही तो 69 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ। अभी इसरो के फॉर्मेशन और नासा के फॉर्मेशन में इतना बड़ा डिफरेंस ये है कि इसरो का फॉर्मेशन इसलिए नहीं हुआ था कि हम लोग दूसरा देश जैसे पाकिस्तान से स्पेस रेस कर रहे हैं। हम लोग का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था, इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन अ हम्बल कॉज कि हम लोग अपने सैटेलाइट्स बनाए ताकि हम लोग अपने जीपीएस खुद से मॉनिटर कर पाए, ना कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री से जीपीएस खरीदे। दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नासा एंड इसरो। नासा का अब अभी वो खत्म हो गया है, लेकिन व्हेन द नासा प्रोपगेटेड
At that time, NASA's main aim was to show that we are better than Russia. Right. इसीलिए नासा को इतना बजट दिया गया जो आज के डेट में भी इसरो को नहीं दिया जाता उतना बजट। Yeah. कारण अपने पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, पहला तो, और दूसरा अगर आप किसी से, क्योंकि बेसिक मकसद ना उसका ये नहीं था कि मुझे स्पेस में लोगों को भेजना है। बेसिक मकसद था कि हमें कुछ ऐसा मिसाइल बनाना है जो दूसरी कंट्री में दूर से भी फायर कर दे, और वहीं से स्पेस रेस का एक एक्सप्लोरेशन हुआ है। दैट इज सो व्हाट आई फील सेइंग दैट दिस ऑल स्पेस रेस आर कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ये दिस ऑल मेरा मानना है, ये पूरा स्पेस रेस इसलिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। या पर आपने अभी ना बोला कि इसरो का बिगिनिंग्स were humble, which is true, because the objective of ISRO was the exploration of space. And and planets also. That was also a part of the thing. Now the thing is, and NASA ka origin was because of the competition. Not because of the competition. आपने ये प्रस्तुत ऐसे किया है, I mean, in a way which is negative, but I don't think that it's a negative thing, because I think that necessity and competition is the mother of invention. That is If Russia had not made all of the achievements that they had said, that they had sent a female dog into space, or the first astronaut that went into space was Russian. I do not think that NASA would have been so successful right now. Yeah. It was because of the competition. That NASA was able to. That NASA was able to send man to the moon. That is so. इस तो कंपटीशन इसलिए जरूरी होता है। तो मेरा ये नहीं कहना है कि हम लोग गलत थे या सही, मेरा बस ये कहना है कि when we started, we didn't started with that cause. That is true. तो अपना काम था स्पेस एक्सप्लोरेशन करना। पहले इसरो का नाम कुछ इंस्पायर बना था, मतलब INS पार। आई थिंक दैट वो नेम इसीलिए दिया गया था कि पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक कमिटी थी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगी। उसके बाद जो गॉड है अपने भारत के, वो है विक्रम साराभाई। भाई उन्होंने जो इफ यू सी, तो उस टाइम दो गॉड हुआ करते थे। एक विक्रम साराभाई स्पेस के गॉड हुआ करते थे, और होमी जहांगीर बाबा उसके गॉड हुआ करते थे, एटॉमिक बॉम्ब। और लिटरली इस वीडियो के तहत मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ दोनों को। ये लोग दो थे इंडिया में, ये वीडियो के तहत हम लोग रोडी सैल्यूट दे देते हैं। चलो दोनों विल गिव रोडी सैल्यूट टू देम। ये क्या मतलब? रोडी सैल्यूट, दिस इज कॉल्ड रोडी। यू डोंट हैव सीन रोडीज? Roadies is like, and I will talk about roadies. We'll have another episode for roadies. Roadies is only series in India that is original, that is not copied. Like Big Boss is copied, Indian Idol is copied. Whatever series you see in India, that reality show is copied. Yeah, one of the other series which is not copied is क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। That is like कुछ होता है DDLJ can't be copied. दिल तो पागल है can't be copied, right? So anyway, Roadies salute, Raghu and Rajiv used to go Roadies salute like this. Okay, so and Raghu and Rajiv are the second person who made bald fashion in India, because previously bald were not in fashion. Okay. So we'll give Roadies salute to them. Like मैं वो normal वाला। Okay, I will give Roadies salute to them. So okay. Okay. So back to the point. तो भाभा जो थे वो पूरे अगेंस्ट थे कि हमें स्पेस पे ध्यान नहीं देना है। भाभा आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि he was a friend but still। नहीं। भाभा जो थे वो अगेंस्ट थे। उनको लग रहा है कि पूरा पैसा अपने को बॉम्ब में लगाना है, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग की उस टाइम चाइना सबसे बड़ा दुश्मन था, पाकिस्तान तो बचपन से अपना दुश्मन रहा है, दोस्त कम दुश्मन जो भी बोल सकते हैं उन्हें। तो वो रहा, तो अपना वो भी मजबूत नहीं था। जब इंडिया आज़ाद हुआ है तो अपना जो डिफेंस था वो स्ट्रांग नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो अपने को बहुत कुछ बिल्ड करना है। इस सब के बीच बहुत लोग नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। इफ यू सी इन मॉडर्न वर्ल्ड, पीपल क्रिटिसाइज नेहरू। ऐसा नहीं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के से बात कर रहा हूँ, but for me, Nehru was a visionary who has seen these all things. And it was because of Nehru, like Bhabha, Atomic Center, BARC, what is there, ISRO. True. Because of him, his visions, he knows that we need, if you want modernization, we need industrialization, we need these kind of organization creation, and that's why
नेहरू इज द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसका फाउंडेशन नींव नेहरू ने रख के गए थे। तो फिर विक्रम साराभाई जो थे वो लड़ते रहे कि नहीं हमें स्पेस चाहिए, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एंड फाइनली नेहरू ने एग्री किया कि हमें एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। राइट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसर्च, उसका पहला काम था बस रिसर्च करना, इंस्पार बोलते थे शायद, मुझे याद है नाम, तो इंस्पार बोलते थे। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और फिर वो इंस्पायर का हुआ। फिर उन्होंने पहला अपना जो रॉकेट है वो आई थिंक यार मैंने ना दो बार अपने गूगल अपने उसका नाम उसने बोला, तो मैंने गूगल मैंने कर लिया। वो इसरो का पहला नाम वो वाज इनकोस्पार्क। ओके गुड। तो इसरो का वो नाम है, मेरे को मैं डेट वगैरह में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है क्या है, ठीक है, डेट या फिर नाम में उतना अच्छा नहीं, दैट ऑल वी कैन सर्च। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो पहला जो अपना रॉकेट जो इंडिया को छोड़ा गया, इंडिया ने जो पहले रॉकेट जो छोड़ा वो रशिया की मदद से छोड़ा, उसका नाम था रोहिणी। सो चालू इस तरह से हुआ। फिर जो अपने वो थे, जो अपने जिद्दी इंसान जो बोल सकते हो, हमारे साराभाई साहब, तो उन्होंने बोला नहीं रॉकेट तो बनाना है, हमें रॉकेट तो बनाना है। और हम लोगों ने पहला रॉकेट 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया, which is tomorrow उसको the date is tomorrow. 55 साल हो जाएंगे तो कल उनको 55 साल छोड़े हो जाएंगे। तो 55 साल पहले हम लोगों ने पहला रॉकेट रोहिणी स्पेस में छोड़ा, और वो रॉकेट जो रोहिणी है वो अर्थ का साउंड और वो सब ट्रैक किया था, ठीक है। रॉकेट का बेसिक चीज होता है कि एक रॉकेट होता है, और रॉकेट को ले जाने के लिए एक व्हीकल होता है। यू कांट गो एंड फायर अ रॉकेट लाइक जैसे माचिस पटाखा आग लगाया, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो एक व्हीकल होता है जो रॉकेट को लेके जाता है, उसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। इंडिया ने पहला अपना, अभी बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड सैटेलाइट। रॉकेट कुछ भी जिस देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो आपका प्लेन जो स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ता है ओजोन लेयर से जस्ट नीचे, राइट, प्लेन जहाँ उड़ता है। रॉकेट, what we call rocket is any kind of device which propagate at an 55 kilometer range from अर्थ से 55 किलोमीटर जो ऊपर गया, 55 से 85 किलोमीटर 89 तक जो जाता है उसे रॉकेट बोल सकते हो। So for today's I'll just jump forward the topic and then come back, okay? Like आज जो रॉकेट छोड़ा गया अपने विक्रम, ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम से, उसका भी टारगेट था 75-80 पहुंचना, वो 89 पहुंचा है। बट if it has crossed 55 किलोमीटर का जोन, it would have been called then it classifies as a rocket. Success rocket, okay. Successful rocket. So rocket और सैटेलाइट में ये अंतर है, रॉकेट अर्थ के इस जोन में उतर के फिर वापस भी आ सकता है, या फिर कुछ रीड करके वो वापस कर सकते हो। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है, राइट। सो if you cross all the stratosphere, there will be the orbit where non-gravity वाले जो रीजन होती है ना, ग्रेविटी फ्री रीजन, वहां पे जाती है सैटेलाइट। सो मैं बता रहा था कि सैटेलाइट जो होता है उसको उसके साथ ना 2-3 चीज भेजा जाता है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर एक ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहता है, नॉट ग्रेविटी के ऊपर बोल सकते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करता है। जैसे मून भी एक काइंड ऑफ सैटेलाइट है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो घूमते रहता है। तो सैटेलाइट को कुछ चाहिए जो उसको एनर्जी दे, इसीलिए उसमें सोलर पैनल लगा के भेजा जाता है सैटेलाइट में। सो भारत ने सबसे पहला जो सैटेलाइट है वो छोड़ा था आर्यभट्टा। करेक्ट। आप डेट बता सकते हैं क्या, आर्यभट्टा कब छोड़ा गया? आर्यभट्टा was launched on 19th of April 75, and it was launched from a rocket which was not an Indian rocket. It was a rocket built by the Soviets. सोवियत यूनियन, ठीक है। तो आर्यभट्टा ने 75। एक यूनिक बात बताओ, ये जो आर्यभट्टा, रोहिणी, इनके जो फादर है, जो हमारे कौन है फादर इनके?
मिस्टर विक्रम साराभाई. मिस्टर विक्रम साराभाई, ये बेचारे पहला भारत का सैटेलाइट लॉन्च देख नहीं पाए. उनका डेथ हो गया था उसके पहले. तो बट लेकिन वट एवर वी आर हियर इज बिकॉज ऑफ साराभाई के बाद इसकी कमान संभाली सतीश धवन. तो सतीश धवन साहब एक मैथमेटिशियन थे. तो उसके बाद इनकी कमान संभाली सतीश धवन साहब ने. एंड सतीश धवन इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइंटिस्ट. सो नाउ जैसे इसरो ने जो सेंटर लिया धवन स्पेस सेंटर, अभी इस उनके नाम पे दिया गया है. तो उसके बाद इंडिया हैज नेवर लुक बैक फ्रॉम द डे इट हैज वेंट आर्यभट्ट. उसके बाद इंडिया ने सबसे बड़ा काम किया है वो अपना लॉन्च व्हीकल बना के. तो लॉन्च व्हीकल बना के आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो. आपके पास टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन लॉन्च व्हीकल बनाने की टेक्नोलॉजी होगी कि नहीं, ये बहुत कम कंट्रीज के पास होगी. सो इंडिया वेंट इनटू द रेस एंड इंडिया बिकेम एट दैट टाइम आई थिंक ओनली 4th कंट्री टू मेक द लॉन्च व्हीकल. फर्स्ट अमेरिका वाज देयर, रशिया वाज देयर, चाइना वाज देयर, एंड देन इंडिया वाज द ओनली 4th कंट्री टू मेक इट्स ओन लॉन्च व्हीकल. और इंडियन तो क्या अपन जुगाड़ू, पहले SLV बनाया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर बनाया उन्होंने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और हम लोगों ने, आपको विश्वास नहीं होगा, जो मार्स का मिशन जो है वो हम लोगों ने PSLV के साथ ही छोड़ा है. उसको रीयूज किया, उसके पूरे कंपोनेंट को PSLV के. मतलब कुछ अलग से नहीं बनाया हम लोगों ने उसके लिए, समझ रहे. तो दैट इज द बेसिक बूस्ट of these all things India. You were talking about the Mars orbiter mission in 2013. 2013. वो उसका बेस जो लॉन्च व्हीकल था ना, वो PSLV का यूज किया. Which probably is the biggest achievement of ISRO because that is the first man-made object of India that orbits Mars. Mars. That is true. Mars. इंडिया का पहला जो अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट जो वर्ल्ड में देखा जाता है, वो था 2008 में चंद्रयान 1. चंद्रयान 1 केम फ्रॉम नोवेयर. लोगों को लगा ये इसरो वाले क्या ही कर लेंगे, 2-4 PSLV वगैरह बनाया. एंड देन वी वर द फर्स्ट टू फाइंड वाटर ऑन मून. चंद्रयान 1 से हम लोगों ने वाटर फाइंड किया, मून पे वाटर है. और फिर MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन का क्या ही कहना. मतलब from that day India never looked back. Mars orbiter mission से Mars orbiter mission was something that need to be discussed always because उससे पहले इंडिया को एक गरीब देश, ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में बस आउटसोर्स करके टेक्नोलॉजी लोग आउटसोर्स करते हैं, अपने से कुछ डेवलप नहीं कर सकते हैं. एंड देन द बिगेस्ट थिंग ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन इज लाइक बिफोर दैट देयर आर मेनी कंट्रीज अटेम्प्टेड, many countries went through in that orbit, but India was the country which went through the first go. We have not failed it. एंड इस पे बहुत अच्छी मूवी है, वो देख सकते हैं, वो मंगलयान. इट्स प्रीटी गुड मूवी. जिन्होंने नहीं देखा, ये पॉडकास्ट क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं है. नहीं, जेन्युइन बोलता हूँ. मंगलयान इज अ वेरी गुड. उन्होंने बताया कि जो एग्जाम्पल दिया गया ना, एक नॉर्मल जो हमारी भारतीय महिला है जब पूरी तलती है, तो वहां से उन्होंने मंगलयान में कंसेप्ट लगाया. मतलब कि पूरी जब हम लोग तलते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो दूसरी पूरी जब आप डालोगे तो उतनी गर्मी की जरूरत नहीं है, पूरी जल जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आंच को कम करते हैं, पुट इट स्लो इन स्लो फ्लेम, एंड देन पूरी डालते हैं. अब पूरी अपने आप फूल जाता है. तो बिकॉज वी वांट टू मेक कॉस्ट इफेक्टिव, हम लोग ना जो ऑर्बिट पे, मार्स के ऑर्बिट पे इंजन को बंद करते थे, खोलते थे, बंद करते थे, खोलते थे. तो उससे क्या होता था, उससे कॉस्ट इफेक्टिव हो गया मिशन. समझ रहे. मतलब कि इंजन बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, इट्स लाइक that was the beauty of that mission. And from आपको पता है क्या, एक इंटरेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक है which is trivia that the total cost of this Mars orbiter mission was $73 million, which is less than the production cost of the film Gravity. That is it's amazing. It is just और ये बात तो जब मार्स ऑर्बिटर मिशन का सक्सेस हुआ था, तो हमारे PM मोदी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला था कि we made a mission which is the cost effective mission. एक चीज पता है जानकर आपने ना बोला कि although currently हमारा पॉडकास्ट है, it's not I mean sponsored. I know कि आपको इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन one of the two has to be a bit practical. अगर कोई sponsors अगर कोई हैं तो we are okay with that because right now it's just a घर का खेती. करेक्ट, ठीक है. तो
तो वो था उसका ब्यूटिफिकेशन। अभी अभी कमिंग बैक टू फ्रॉम देयर टू मार्स ऑर्बिटर मिशन से अभी आते हैं हम लोग। एक आपको पता है कि ना चंद्रयान 1 जो कि 2008 में था, और मार्स ऑर्बिटर मिशन which was launched on 2013, and it has been orbiting planet Mars since 2014. uh, I mean, it's tremendous. You know, in दोनों missions के बीच में there was a Chandrayaan 2 also, which had failed in the sense, you know, that uh, it reached just a few miles to the surface of the moon, and then there was a problem in the landing. करेक्ट। सो चंद्रयान 2, पहले तो चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं, फिर मैं उससे पहले वाले मिशंस पे आऊंगा। चंद्रयान 2 को हम लोग फेल पूरी तरह से नहीं बोल सकते। चंद्रयान 2 में 2 मिशन था। एक मिशन था ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करेगा मून का, एंड दूसरा मिशन था रोवर जो which will land on the moon. ऑर्बिटर इज स्टिल देयर, Okay. ओनली रोवर हैज फेल्ड। ओके, रोवर का फेल होने का कारण ये था कि हम लोग उस जगह पे लैंड करना चाहते थे मून के जहाँ पे आज तक किसी ने लैंड किया ही नहीं था। सो वी थॉट दैट वी विल बी डूइंग एट द फर्स्ट साइट, so that because there is a part of moon which get very less light, at that part of moon we were supposed to land, so that the reason लोग सोचते थे कि ये फेल है, तो फेल नहीं हो, half सक्सेस है, still orbiter is still revolving, but the lander has failed, you can say. Yeah, that's okay, because the thing is, that all of this engineering is so complex, that there is, that the chances of success are minuscule, right? And getting into one time is like failure is it's fine. It's a part of the learning. One of the examples is that right now, the 2 oxes may be considered to be a failure, but you never know. So sponsors. So वही बोलते हैं कि वो फेल पास, जैसे कोडिंग करते हैं, आपने जब जावा का जो पता नहीं जो भी हमारे व्यूअर जो कोडर है, अगर वो कोई जब फर्स्ट टाइम आप जावा का हेलो वर्ल्ड अगर लिखे होगे अपने जमाने में नोटपैड ओपन करके, वो भी आप पहली बार में नहीं सक्सेस, क्या है वो हेलो वर्ल्ड आप सक्सेस नहीं लिख पाते, और वो लोग ऐसी मिशंस फर्स्ट टाइम पे सक्सेस कर देते जो कि वे बियॉन्ड हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड तो कुछ नहीं है उसके सामने, राइट? तो हेलो वर्ल्ड लिख ले, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक, अगर आप आईटी कंपनी में कोई भी आईटी का प्रोजेक्ट छोटा से छोटा हो, बता दो बिना बग के कोई डिलीवर हुआ आज तक नहीं, बता दे दैट देयर इज अ मर्फी एक बहुत बड़ा नॉट साइंटिस्ट बोल सकते हो, थ्योरेटिक था, उसने एक बहुत बड़ी थ्योरी दी थी पहले, उस थ्योरी का न्यू मॉडर्न वर्जन मैंने निकाला है। वो मर्फी थ्योरी का मॉडर्न वर्जन ये है कि नो सॉफ्टवेयर इन दिस वर्ल्ड कैन बी डिलीवर्ड with zero defect on time. If it is a defect on zero defect and on time, it is because there has been some alteration with the requirement or the company is faking it. Okay. Otherwise नहीं हो सकता। तो सोचो, मतलब एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर अच्छे से यहाँ नहीं चलता है, वो लोग भाई चांद पे और मार्स पे मिशन छोड़ रहे हैं, भाई वो लोग तो बहुत ग्रेट आदमी होंगे ना। So आपको पता है that Mars orbits the sun, right? So obviously, not all of the time, the distance between the Earth and Mars is the same. That is true. But the launches for Mars from Earth are done at a time when Mars is the closest in distance to the Earth, and that distance takes a time of 7 months. That is true. 7 months. Yeah, that is true. और इनके पास मालूम, इनके पास बैकअप प्लान भी था, अगर पहली बार में वो 7 मंथ में नहीं घूम पाता तो दे हैव अ बैकअप प्लान, एक और 7 मंथ के बाद वो वी गॉट इट फर्स्ट टाइम, बट दैट इज द ग्रेट थिंग। तो मतलब ये लोग भाई बहुत ग्रेट आदमी। तो हम बात करें मार्स की, तो ये मॉम मिशन तो हेड्स ऑफ था इसरो को, और उसके पहले आया हम लोग उसकी बात करते PSLV एंड GSLV। पहले GSLV आया, फिर PSLV से हम लोगों ने ऐसा, PSLV से ना क्या हुआ ना, इसरो एक ऐसी आइडेंटिटी बन गई है, गवर्नमेंट की आइडेंटिटी। पहले टू बी फ्रैंक, हम लोग सब लोग इंडिया से, पहले ऐसे इंडिया में बोलते थे ये तो सरकारी कंपनी है, क्या ही करेगा ना, ऐसे ही था इंडिया में। लोग सरकारी ऑफिस नहीं जाते थे, मतलब मालूम, लोग सरकारी ऑफिस ज्वाइन नहीं करते थे, अरे ये तो सरकारी ऑफिस है, यहाँ क्या ही होता है।
इसरो ने ना उन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा डाल दिया सीधे, जो 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 ये सब बात बोलते थे ना कि ये तो सरकारी है, ये क्या करेगा, सरकार में कुछ काम नहीं होता है। एंड इसरो ओवर द टाइम हैज बिकम आई आइडेंटिटी जिसको सरकार की फंडिंग से ज़्यादा बाहर की फंडिंग आने लगी है। हम लोग के पास स्पेस व्हीकल है, हम लोग दूसरे के लिए रॉकेट छोड़ने लगे आज दूसरे कंट्री, हर एक कंट्री के पास ये फैसिलिटी नहीं है। इसरो हैज गॉट रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग द largest number of satellite at one go and heaviest number of satellite at one go. I'll tell you one thing, that on the, and this is something that I'm reading, obviously I don't, kind of recall all the statistics, but on the 23rd of October of this year, ISRO launched a total of 36 satellites, which I had mentioned, and this was for the UK. I mean, UK का खुद का space agency, I don't think it's there because UK is so busy in finding out who should be the prime minister. So everything of the UK is outsourced, and the total, the weight of the payload that was launched was 5,400 in kilograms. It's fantastic. It's fantastic. So मेरा टोटल बोलने का मतलब ये है कि ये सबसे कि ये जो यूके की बात करें आप, तो यूके के पास अपनी एक स्पेस एजेंसी थी, अभी थी। तो मेरा ये मानना है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में पहले जैसे यूके पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बनाया था, मेरा मानना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये पूरे वेस्टर्न जो रीजन है ना, बीट अमेरिका, बीट फ्रांस, बीट अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूएस की कॉलोनी बन रही है मॉडर्न वर्ल्ड में। यूके का स्पेस एजेंसी को बंद करवा दिया यूएस ने। अभी जो बड़ी स्पेस एजेंसी, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी खड़ी है, एक चाइना की स्पेस एजेंसी है, एक आपको इंडिया की हो गई है, और अपने यूएस की तो है ही। उसके बाद ओवर द टाइम अभी आगे थोड़ी बात करते हैं, प्रॉब्ली लंबा हो रहा है इसीलिए। ओवर द टाइम अभी ये मॉडर्न जो वर्ल्ड में प्राइवेटाइजेशन जो स्पेस का है, इसमें एक क्या चीज़ बोलते हैं, सनक बोलते हैं हिंदी में। एक पागल इंसान आया जिसका नाम था एलोन मस्क। उसको सनक था कि मार्स में मुझे कॉलोनी बसानी है। तो उन्होंने एक रॉकेट का स्पेस एजेंसी चालू किया, स्पेसएक्स। फिर अमेजन के सीईओ साहब है जेफ बेजोस, उन्होंने ब्लू ओरिजिन चालू किया। मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के पास पैसा है, और फिर इन दोनों के बीच कंपटीशन चालू हो गया। ये कंपटीशन किस चीज के लिए था कि रॉकेट ऊपर छोड़ के फिर से पुराने रॉकेट से, अभी जो आज अपने रॉकेट जो छोड़े गए पुराने रॉकेट, वो क्या होता था, रॉकेट जाते थे हवा में और फिर कहीं ओशियन में उसको डंप किया जाता था, राइट। तो अभी आप स्पेस में जाओगे, अगर स्पेस, दो चीजें, एक मार्स में कॉलोनी बसाना, एक स्पेस ट्रेवल। इलॉन मस्क का मकसद है मार्स में कॉलोनी बसाना, और इनका मकसद है स्पेस ट्रेवल करवाना, जेफ बेजोस का। अगर स्पेस ट्रेवल कराना है आपको, तो आपको ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो वापस घूम के लैंड हो जाए अच्छे से, रादर। तो इन दोनों के बीच वो कंपटीशन में नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जो कि सबसे पहले बोलते हैं ये करना, सबसे पहले बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ जिससे वो रॉकेट फिर से वापस लैंड हो जाता है प्रॉपर्ली। अभी ये जो बंदे हैं हमारा बात करते हैं, हमारा जो नया टेक जाइंट है। टेक जाइंट पे बात करने से पहले प्रॉब्ली हम लोग अपने इंडिया के स्पेस एजेंसीज की बात करते हैं जो नए आ रहे। अभी अमेरिका में तो कंपटीशन चालू हो गया। इस बात पे मुझे मिस्टर मोदी जी को बहुत थैंक यू करना है। उन्होंने 2020 में एक कमिटी बनाई, इंस्पायर करके, शायद मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं, इंस्पायर विथ इसरो के फाउंडर मेंबर्स, इसरो के साइंटिस्ट लोगों के साथ, जो इंडिया में प्राइवेट एजेंसी को बढ़ावा दे, प्राइवेट स्पेस एजेंसी को। सो ये जो कमिटी थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बूस्ट करती है इंडियन जो प्राइवेटाइजेशन है उसको। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, और आपको विश्वास नहीं होगा, इंडिया में 500 से ऊपर और 600 से नीचे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, इतनी स्पेस स्टार्टअप हो गई है 2 साल में।
2 साल में इतनी स्पेस स्टार्टअप हो गई जो इनक्रेडिबल है। इसमें इसमें दो 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 बड़ी कंपनी अभी है जो अभी जिनका रॉकेट लॉन्च हुआ है, स्काईरूट, और एक अग्नि करके कुछ है, मेरे को नाम नहीं याद है। Okay. वो एजेंसी क्या करती है, वो 3D प्रिंटिंग करती है स्पेस के रॉकेट के इंजन का। दैट इज इनक्रेडिबल। आज तक वर्ल्ड में किसी ने 3D प्रिंटिंग नहीं किया रॉकेट का। अग्नि करके मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो वो है। तो these guys are doing incredible. Here I will ask from Google, uncle. Uh-huh. There are a lot of companies actually, you know. The name of the company आप जो बोल रहे हो is Agnikul Cosmos. Agnikul Cosmos. Agnikul Cosmos. कोई अग्नि करके था। तो $55 मिलियन का फंडिंग 2 साल में इन्होंने निकाला है। $55 मिलियन की फंडिंग 2 साल में अपने स्काईरूट ने निकाला है, एंड करीब 20 से 25 मिलियन डॉलर अग्निकुल कॉस्मोस ने निकाला। Yeah, आपको पता है, you know, that is one of the things, you know, which is a difference, you know, which is one of the reasons which is which defines the success of any space agency is the funding and the money. अभी आपने ना बोला कि you know कि अभी it's like, you know, you mentioned the amount of money which was raised, right? आपको पता है, you know, what was the cost of the James Webb Telescope का पूरा जो exploration था, which is fantastic. It cost in the region of $10 billion. नहीं, अभी इस पे भी मेरा अगला पॉइंट इसी पे था कि why these all players will play the big game coming forward. ये सब प्लेयर बिग गेम कमिंग, ये आगे मैं बताना चाह रहा था, लेकिन ठीक है आपने ये बोला तो अभी बताता हूँ कि ये सारे प्लेयर जो अभी मैं तीन बेस्ट अभी जो स्पेस एजेंसी इन इंडिया का मैं नाम लिया। एक तो अग्निकुल जो 3D रॉकेट प्रिंटिंग जिसने किया है, ये है। जो तीसरा इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है वो है दिगांदर। दिगांदर जो है वो, उसका इतना यूनिक कंसेप्ट है गौरव भाई। ये जो चाइना वाला है, मालूम है, जैसे आप अपने घर में कचरा फेंकते हो तो कोई आगे कचरा आपका साफ करके लेके जाता है, राइट? सबसे ज्यादा फेल्ड मिशन स्पेस में चाइनीज स्पेस एजेंसी ने किया है। और स्पेस ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होते रहते हैं। दिगंबर इंडिया का और वर्ल्ड का एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जो वो कचरा साफ करेगा। उनका मकसद ही है, दे विल क्लियर दोस गार्बेज। उस गार्बेज का एक नाम होता है, पर्टिकुलर स्पेस गार्बेज का, उस स्पेस गार्बेज का एक नाम होता है। तो उसको साफ करेगा। Space debris नहीं, पर debris तो is anything ना, उसको डेब्रीज ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसको साफ करेगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात। हाँ, अभी मैं उस मेन मुद्दे पे आता हूँ जो उस पे मालूम है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? कुछ दिन पहले हुई 8 बिलियन। ओके, ये धरती क्या 8 बिलियन पॉपुलेशन को संभाल पाएगी? यार 8 बिलियन में से ना 2/8 is I think 1/7 or rather 2/7 is India and China। हाँ, कोई भी हो। और उस पे भी मैं एक अलग पॉडकास्ट बना सकते हैं हम लोग। जो नया जो वर्ल्ड है 2050 में, अफ्रीकन्स विल बी मोर देन इंडियंस एंड चाइनीज, बिकॉज वी हैव कंट्रोल पॉपुलेशन अफ्रीकन्स। सो नेक्स्ट सेंचुरीज ऑफ अफ्रीकन पीपल आर टेलिंग, क्योंकि वहाँ पे वही 4, 5, 10 बच्चे ऐसे कर ले रहे हो आजकल। अभी एक नॉर्मल कोई अफ्रीकन से मिलोगे उसके 5-6 बच्चे होंगे, भाई बहन। तो वैसे वहाँ पे भी वो सब का यूज नहीं करते वो लोग, प्रोटेक्टिव जो बोल सकते हो, कॉन्डम्स वगैरह, उसका यूज नहीं करते वो लोग। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू स्पेस प्रोग्राम। सो अभी अर्थ इसको संभाल नहीं पाएगा, ठीक है? हम लोगों को डायनासोर एग्जिस्टेंस कैसे किया था? अचानक से कोई मीटियोर आया, उड़ गया डायनासोर। डायनासोर से पहले भी डिफरेंट एजेस हुए, राइट? स्टोन एजेस, और वो डिफरेंट एजेस हुए। जब अर्थ में कभी तो हैबिटेट स्टॉप हुआ, राइट? इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट सिविलाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, वो सिविलाइजेशन खत्म हुआ है, फिर से आया, खत्म हुआ है, फिर से आया। तो इट जस्ट टेक अ मोमेंट और जस्ट टेक अ थिंग दैट कैन स्वाइप द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। प्रॉब्ली अगर कोविड का वैक्सीन नहीं बना तो वी मस्ट थिंक अबाउट समथिंग टू गो आउटसाइड द स्पेस। ओके, व्हाई दीज आर प्लेयर्स विल प्ले अ बिग रोल इन दिस, आवर इंडियन प्लेयर्स इन बिग रोल इन दिस। आप एक $70 बिलियन का फ्लाइट लेके बना के एक
एक टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट? दो जो टेलीस्कोप जेम्स हब इज प्रीटी गुड, 10 बिलियन का है, राइट? और कितने लोग जा पाएंगे बाहर? So these all players, Indian players, will be for masses like me, you. If we want to do a space travel, these all players will make a big impact on. Yeah, we will first need a sponsorship. Then we'll our episode. But I get your point. Okay, so these all players will make a very big impact, hugely. Because we are Indians, we always will be cost effective. As you know, right? 55 million पे उन्होंने पहला रॉकेट भी छोड़ दिया, और 108 में गैलेक्सी कौन सी मूवी है जो भी बनी थी, ग्रेविटी मूवी, तो उन्होंने 55, और उन्होंने पहला स्पेस मिशन का नाम जो रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया विक्रम, उसका नाम दिया प्रारंभ. मतलब प्रारंभ इज स्टार्टिंग इन इंग्लिश, हिंदी प्रारंभ, एंड आई लाइक द नेम, आई लव दैट नेम. It's fantastic. It means that they have a series of events to go. And these guys have done an awesome and fantastic job today. Brilliant. Today they have reached, the rocket has reached a height of 89 kilometers, and it landed back in the Bay of Bengal. Wow. And that is, I was just watching that. And as an Indian, you should watch it. And मेरा ये कहना है सारे मीडिया लोगों से, भाई हम लोग के यहाँ भी अच्छे स्पेस एजेंसीज आई हैं, कर लो. ये तुम लोग सिर्फ अपने यहाँ घटिया चीज़ें कवर करते रहते हो हमारे यहाँ, कि बाढ़ हो गया इंडिया में, पुल टूट गया कवर था भाई. जो इंडिया में पुल टूट गया ना, जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो मैं मेरे जो ऑफिस में जो कलीग्स है यहाँ पे, जो अंग्रेज कलीग्स लोग हैं, उनके साथ मैं सुबह कॉफ़ी पीने डेली जाता हूँ. कॉफ़ी में पीता नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाला हो गया. तो न्यूज़ में ना वो लोग एक कॉफ़ी में सबसे पहले दिन बोले थे कि इंडिया में एक पुल टूट गया है. दैट वाज इन BBC. तुमसे कहना चाहता हूँ यार, कवर करना है तो ये कवर करो. Shame. Absolute shame. ये पुल टूट गया, ये तुम कवर कर रहे हो यार. This is bullshit. This is completely bullshit. No, but since India was a colony of the British now, maybe and BBC is a government org, right? Maybe उनका mentality is कि नहीं, यहाँ पर उनका mindset has become very negative and backward about India. ये सब माध्यम से मैं बोलना था, तो स्काई रूट के CEO पवन कुमार चंदना जी जो है, पवन कुमार चंदना जी को एक हैट्स ऑफ है, सैल्यूट. Hats off. क्योंकि ये जो मिशन था ना, ये आप सोचो, एक छोटी सी कंपनी खोलते हो, हाँ, आपकी कंपनी 4 साल में, सिर्फ 4 साल में एक रॉकेट लॉन्च कर दे रही है, तो सोचिए कितना बड़ा दिमाग होगा पीछे. दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनका जो एवरेज एज है जो एम्प्लॉय का 30 के नीचे है. या इनके कंपनी में 200 साइंटिस्ट काम करते हैं. 200 साइंटिस्ट का एवरेज एज 30 के नीचे है. So such young blood, young guns of India is making satellite which is just traveling in 4 years. That is awesome. It is a thing of pride. It's just a company which is in 4 years which is making a rocket and which has made India proud. You should be proud of it. So that it is, but it is like pretty awesome thing. Okay. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. Actually, let's start with a little bit of trivia. Okay. मुझे आपसे एक क्वेश्चन एक ना पूछना है. ट्रिविया बोले तो क्विक क्वेश्चन आंसर. ओके ऐसा बोले ना मेरे को भाई. मतलब भले मैं बाहर रहता हूँ, मेरे को ट्रिविया से पहले मुझे एक ना क्वेश्चन है. वी आर प्राउड इंडियंस, वी टॉक अबाउट इंडिया, वी आर प्रमोटिंग इसरो एज वी शुड, राइट? फैंटास्टिक. ये मत पूछना, मैं नासा का. व्हाई आर यू वेयरिंग अ टी-शर्ट ऑफ नासा? एक्चुअली मेरे को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही. और सबसे बड़ा जो खराबी है इसरो का, दे आर वेरी बैड एट देयर प्रमोशन, मर्चेंटाइज. मैं इसरो, अगर मेरा पॉडकास्ट से कोई इसरो के साइंटिस्ट, या प्लीज आप लोग इस मार्केटिंग को एडॉप्ट कर ले. यू आर वेरी बैड एट मर्चेंटाइज. अमेजन पे इसरो के टी शर्ट मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन दे आर प्रीटी कॉस्टली, एंड दैट टी शर्ट इज मेड इन कंबोडिया. I don't know why. I had one T-shirt of that. मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे फेंक दिया, इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड को भी डंप कर दिया. So बोले तुम T-shirt फेंक. And this T-shirt is, if you see the back, what is written? 100th space shuttle mission. So that is this was exclusive NASA launch of the one that day. एक बार आप दिखा दो सब व्यूअर्स को. हाँ, लेकिन पैंट ऊपर कर देना. वो आप कट perfect. नहीं कट नहीं करना है. टाइम फॉर सम ट्रिविया.
और ट्रिविया मतलब कि क्वेश्चन आंसर, क्विक क्वेश्चन आंसर, मतलब क्विक क्वेश्चन आंसर. हिंदी में बोलते हैं कि तुरंत जवाब फौरन, हाँ. तुरंत सवाल फौरन जवाब, तुरंत सवाल फौरन जवाब, तुरंत सवाल फौरन जवाब. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि स्पेस, राइट, हम लोग इतना बात किए स्पेस, ये वो सैटेलाइट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एक कॉमन आदमी, एक कॉमन इंसान, उसको स्पेस से क्या मिलता है? वो तो भूख के जो 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 जैसे हम लोग, जैसे मीडियोकर लोग, हम लोग को स्पेस से क्या मिलता You know, this question is excellent because we all need to be able to relate to this space exploration, right? I'll tell you a couple of things which we have got because of space exploration. Now, because of lack of time, we won't explain each and everything that can be read upon the internet. Okay. Now, one of the things that we have received is glasses, is the lenses, and specifically the lenses which do not get scratched. Because if an astronaut is outside, doing the welding of the rocket, वो scratch तो नहीं आ सकता ना, right? The other big thing which is surprising that we have received because as a benefit of space exploration is sneakers, is the sports sneakers, because that material which is used in sneakers, not trainers, is the same kind of material that is used in the space suits. Yeah. Okay. अच्छा, अभी you tell me a couple of things. Okay. Couple of things, जैसे the most important thing जो हमें as a humanity जो स्पेस से मिला है, वो है बच्चों का फूड, बेबी फूड. जैसे सेरेलैक इंडिया में है आप, तो जब कोई साइंटिस्ट है, कोई उड़ेगा हवा में, तो वो तो रोटी सब्जी नहीं बनाएगा ना भाई, वो दाल चावल खिचड़ी कैसे बनाएगा? तो उसको एक ऐसा फूड चाहिए जिसमें सब न्यूट्रिशन भी हो और खाने में भी इजी हो. तो वो हमें स्पेस से मिला है. दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें स्पेस से जो मिली है, वो आप देखते हो ना, जो बेचारे जिनका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो उनको एक आर्टिफिशियल ये लिम्स लगाया जाता है. वो लिम्स का इजाद स्पेस से ही हुआ है, क्योंकि जब लैंडर जब होता है ना, जैसे बहुत हार्ड सरफेस पे बहुत स्पीड से लैंड करते हो आप, राइट. जैसे मार्स की बात करें, मार्स में पैर ऊंचे नीचे ही है, तो उसपे उसके जो पैडों में ना सस्पेंशन लगाया गया है, जो डिवाइस है, तो वहां से ये लिम्स का इन्वेंशन हुआ है. एंड द अदर बेस्ट थिंग इज द फायर सूट. जब रॉकेट में आग लग जाएगा तो फायर सूट, तो ये फायर सूट का तो स्पेस से, तो जैसे हमें फाउंटेन पेन और पायलट पेन जो मिला है, वो प्लेन से मिला है, उसी तरह स्पेस से भी ये सब काफ़ी चीज़ें और भी बहुत चीज़ें. So these are the two things which I remember. Okay. One of the other things that which I googled, to be very honest, one of the other inventions that was triggered because of space exploration is diapers or nappies. Right? Because again, when an astronaut is outside, of the rocket, and he's doing his welding or screwing or whatever is it that they do, if they have to pee or poop, they will not go in, knock on the door of the rocket and say कि मुझे लगी है तो मुझे अंदर आने दो. So that is one of the inventions. मैं एक और पता है, we are I think that we have run out of time. I think we have already shooted for 2 hours. I don't know कट करके कितना देर, 1 hour तो ऊपर शूट हो गया है. Yeah, I think that we are running out of time right now. पर एक दो और questions मैं आपसे पूछता हूँ which are surprising. Okay, do you know which is the hottest planet in the solar system? Hottest? Venus होगा सर. It is Venus. It is Venus. Do you know which is the country which is the only country in the world that sent a probe that landed on Venus? America. No, it was Russia. Oh, Russia. Oh, those. Yeah, I remember. Now I remember. And that probe, वो रशिया का एक्सपेक्टेशन था कि that probe will last for just a few minutes. I think मुझे टाइम नहीं पता. Someone can just add a comment and just inform us. I think कि रशिया का एक्सपेक्टेशन था that probe will last on Venus only for 30 minutes, but it lasted for, I think, for 60 minutes or for 90 minutes. So on Google you can actually go and see what is the sound of Venus and some of the pictures of Venus. It's fantastic. एक और चीज I will ask you. Okay, which is the farthest
man-made object that has ever been sent. हाँ वो मुझे मालूम है, नाम नहीं मालूम है. ये अपना वाइजर है शायद. It is the Voyager. नासा का ही वाइजर, वो प्लूटो को क्रॉस करके चला गया है आगे. हाँ ये सब मैं एक चीज और अपने दर्शक को बताना चाहता हूँ कि इसरो is to be looked on, has to be looked on for the further missions, because इसरो के नए मिशन बहुत खतरनाक होने वाले हैं. 2024 में गगनयान होने वाला है. Okay. We will be sending first man Indian made vehicle से first man made mission करने वाली इंडिया. अभी तक इंडिया से बस एक ही बंदा गया है, वो राकेश शर्मा. In space. First Indian. The first man. And he was done with the Soviet vehicle way back. उसके बाद तो इंडिया से कोई नहीं गया, and this was the first mission that India will be creating its own pilot and giving it. तो गगनयान is the mission to be looked on. शुक्रयान, वीनस से याद आया मुझे. शुक्रयान is another mission. Will be sending a thing to Venus again. This NASA. शुक्रयान is another mission. Chandrayaan 3 will be launching for the moon. For the moon, for the same thing. We'll be reattempting to go there. ये 3 मिशन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है. Amazing. And साथ मंगलयान 2 भी बन रहा है, which will be having a lander and rover. So मेरी तो गुजारिश है कि गवर्नमेंट से इसरो को प्लीज फंड करे, so that they will come with the new innovation technology and trend. हमारे पॉडकास्ट को भी कोई फंड कर दे प्लीज. आई नो कि हमारे पॉडकास्ट हम लोग इससे भी अच्छा पॉडकास्ट बना सकते हैं अगर आप लोग फंड करेंगे तो. Right. But ISRO and India and the engineers of India, I mean, and the brains of India, thank you so much and all the best. All the best. Thank you.